شہر بغداد سے دور ایک چھوٹی سی بستی میں ایاز نامی ایک بوڑھا تاجر رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر اس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور اسے اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ ایاز کا بڑا بیٹا حسن نہایت اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف ذہین تھا بلکہ اپنے عمدہ کردار کی وجہ سے بستی میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حسن ہمیشہ کاروبار میں خود پر زیادہ بوجھ ڈالتا اور اپنے چھوٹے بھائی کامل کو زیادہ ذمہ داریوں سے بچاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کامل کو مسلسل نصیحت بھی کرتا کہ تجارت میں ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اسے سکھاتا کہ سچائی اور دیانت داری کے بغیر کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ کچھ عرصے بعد ایاز کے دل میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ وہ اکثر بیٹھ کر یہ سوچتا کہ کیوں نہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرا دے۔ وہ جوان ہو چکے ہیں اور شادی کے بعد اپنے گھر بسائیں گے تو زندگی مزید سانور جائے گی۔ یہ خیال اسے ایک طرح کی تسلی دیتا کہ ان کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بے سہارا بیٹے کس طرح زندگی گزار پائیں گے؟ حالانکہ وہ اب جوان اور خود مختار تھے، لیکن پھر بھی یہ خیال ہر باپ کی طرح ایاز کے ذہن میں بھی گونجنے لگا۔ لہذا ایاز نے اپنے بیٹوں کی شادی طے کر دی اور بغداد کے شہر میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں ان کا نکاح کرا دیا۔ شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ بستی کے لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوئے۔ ایاز کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں بعد اس کے دل کو حقیقی سکون ملا ہو۔ گھر میں افراد بڑھنے سے خوشی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایاز اپنی بہوؤں کا خاص خیال رکھتا اور اپنے نسلوں کی امید پر دن گزارتا۔ اس کی بیوی بہت پہلے وفات پا چکی تھی۔ بیوی کے گزر جانے کے بعد ایاز بچوں کے سہارے جی رہا تھا، ورنہ زندگی سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ لیکن اب اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے زندگی کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی ہوں۔ مگر کچھ وقت بعد کامل، جو پہلے ہی لاپرواہ اور سخت طبیعت کا مالک تھا، اپنے باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تیز لہجے میں بولا، ابا، مجھے کاروبار میں اپنا الگ حصہ چاہیے۔ میں بڑے بھائی حسن کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ وہ کمائی کا زیادہ حصہ خود رکھ لیتا ہے اور مجھے کم دیتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ کامل کی باتیں سن کر باپ کے دل میں بھی ہلکا سا شک پیدا ہوا کہ شاید کامل کی بات میں کچھ سچائی ہو، کیونکہ بظاہر تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ حسن کی طبیعت سے خوب واقف تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک حسن نے نہ کبھی چوری کی تھی اور نہ ہی جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہمیشہ ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارتا آیا تھا۔ لیکن پھر بھی ایاز نے کامل کی بات کو نظر انداز نہیں کیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آخرکار اس نے حسن کو بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی اور دیانت کے راستے پر چلے ہو اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہاری رضا ہو تو کاروبار کا بٹوارا کر دینا بہتر ہوگا تاکہ دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ یہ کہتے ہوئے ایاز کے لہجے میں افسوس بھی تھا اور بے بسی بھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو۔ حسن، جو ایک نیک دل اور سمجھدار انسان تھا، یہ سن کر غمزدہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کے والد کے سامنے ہی کاروبار کا بٹوارا ہو گیا تو اس صدمے سے ابا شاید غم سے مر ہی جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والد کی زندگی کے آخری دن کسی پریشانی میں گزرے۔ دوسری طرف حسن جانتا تھا کہ کامل کو تجارت کے معاملات کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ اگر اسے الگ کر دیا گیا تو وہ ناسمجھی میں سارا سرمایہ ضائع بھی کر سکتا ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر حسن نے کاروبار تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر کامل تیزی میں آ گیا۔ اس نے غصے سے باپ کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں کہا، دیکھ لیا ابا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ ٹھگ ہے۔ یہ مجھے ورغلانے کے لیے میرے حصے کے پیسے چوری کر رہا ہے اور مجھے کم دیتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا۔ اب جو ہوگا الگ ہو کر ہوگا۔ کامل خود بھی لاپرواہ اور ناسمجھ لڑکا تھا، لیکن اس کی سوچ کے پیچھے اس کی بیوی بھی ملوث تھی۔
जो कामिल की कम अक्ल का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन जब लड़का अक्ल से पैदल हो तो लड़की को कसूरवार ठहराना बेजा है। लिहाजा पहले तो हसन ने नरमी से कामिल को समझाने की कोशिश की। वो धीमे लहजे में बोला, देखो भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, हर रकम दर्ज है। अगर सब कुछ साफ तौर पर लिखा जा रहा है तो फिर मैं कैसे पैसे चोरी कर सकता हूं? लेकिन कामिल अपनी जिद पर डटा रहा और हसन की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार न था। ये देखकर हसन ने मजीद वजाहत के लिए कहा, अगर तुम्हें मेरे इखलास पर शक है तो हमारे साथ जो 2 मजदूर काम कर रहे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। अयाज ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, घर की बात बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने हसन की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोला, बेटा, बस छोड़ो ये मामला, कारोबार का हिसाब कर लो। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा कामिल का। जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे बस इतना पैसा दे देना कि मेरा गुजारा हो जाए। बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी जिंदगी संवारो। अयाज की ये अल्फाज हसन के दिल पर तीर की तरह लगे। इसे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने उन्हें काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साया बने रहे, आज उन्हीं के सामने उनके माल को तकसीम कर दिया गया। ये एक ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था, और ये महज कामिल की बेवकूफी की वजह से था। लेकिन इसने जब्त किया। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई तलखी पैदा हो। लिहाजा उसने खामोशी से बाप की बात मान ली और सबके सामने कारोबार का बंटवारा कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बन गए। दूर दराज इलाकों से कपड़ा और मसाले वगैरह लाकर बगदाद में फरोख्त किए जाते थे। हसन जानता था कि कामिल की फितरत लापरवाही की है और वो कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं रखता। इसे यकीन था कि कामिल पैसे जाया कर बैठेगा, मगर वो कर भी क्या सकता था। हालात के मुताबिक इसे यही सब सहना था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, मगर कारोबार अलग अलग था। पहले जो 2 मजदूर उनके साथ काम करते थे, वो भी तकसीम हो गए। एक कामिल के साथ और एक हसन के साथ। जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। हसन की समझदारी और मेहनत की बदौलत इसका कारोबार तरक्की कर रहा था, जबकि कामिल की लापरवाही और नासमझी ने जल्द ही इसे तबाही की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में नुकसान होने लगा और वो मुसलसल घाटे में जा रहा था। कुछ अरसे बाद बड़े भाई हसन ने कामिल को नरमी से समझाया, भाई, अपने कारोबार का हर महीने हिसाब किताब किया करो, ताकि तुम्हें कमाई और नुकसान का अंदाजा रहे। ऐसा न हो कि तुम मुसलसल नुकसान में जा रहे हो और तुम्हें पता ही न चले। मगर कामिल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल और कारोबार के मामलात से नावाकिफ था, अपनी जिद पर कायम रहा। उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है। मैं कमाई में हूं और मुझे 1 टके का हिसाब रहता है। तुम फिक्र ना करो। हसन और अयाज दोनों कामिल की लापरवाही से खूब वाकिफ थे, मगर वो खामोश रहे। जानते थे कि समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर कामिल ने वो दिन देख लिया जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब इसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वो कर्ज में डूब चुका है। मगर उसके गुरूर का आलम यह था कि वो खुद को तसल्ली देता रहा, कोई बात नहीं, दुकान में अभी काफी सामान मौजूद है, जैसे तैसे करके कर्ज उतर ही जाएगा। मगर वो ये नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही इसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो भी आया जब कामिल की दुकान में सामान कम होने लगा। वो जो कभी शान से कहता था कि सब कुछ इसके काबू में है, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा था। बाप और हसन दोनों कामिल की ये दलेराना बातें सुनकर सोच में पड़ जाते कि शायद इसने कहीं और पैसे लगा रखे हों, शायद वो कुछ और मंसूबा बना रहा हो। मगर सच तो जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। कुछ अरसे बाद बिलाखिर कामिल कंगाल हो गया। एक दिन वो बोझल कदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से कहने लगा, अब्बा, मैं मुसलसल नुकसान क्यों कर रहा हूं? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूं,
फिर भी मेरा कारोबार डूब गया। और देखो हसन का कारोबार कितना तरक्की कर चुका है। आखिर उसकी क्या वजह है? अयाज एक समझदार और तजुर्बाकार शख्स था। उसने कामिल की बातें गौर से सुनी, लेकिन कुछ न कहा। वो जानता था कि कामिल ज़बानी बातों से नहीं मानेगा जब तक कि उसे अमली सबक ना दिया जाए। इसलिए इसने एक तरकीब सोची। शाम को अयाज ने दोनों बेटों हसन और कामिल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले शर्त यह है कि आज रात तुम दोनों मेरे कमरे में गुजारोगे। दोनों ने फौरन हामी भर ली। रात हुई और सब अपने बिस्तरों पर लेट गए। जब मुकम्मल खामोशी छा गई और दोनों बेटे गहरी नींद में चले गए तो अयाज आहिस्ता से उठा और दोनों के बटुए जो उन्होंने तकिए के नीचे रखे थे निकाल लिए। वो बटुए अशरफियों से भरे हुए थे। बटुए चरा कर वो दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई तो तीनों जागे, नमाज अदा की और नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म हुआ तो कामिल ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और चलाया, मेरा बटुआ कहाँ गया? उसने पूरा बिस्तर उलट दिया मगर बटुआ नहीं मिला। मेरे पैसे कहाँ गए? किसने चराए? कामिल गुस्से से चलाने लगा। वो फौरन हसन की तरफ देखकर बोला, यह तुम्हारी ही हरकत है, तुमने मेरा बटुआ चरा लिया है। फिर वो अयाज की तरफ मुड़ा, अब्बा, अपने ही तो हमें यहां से लाया था, क्या आपने मेरा बटुआ चराया है? क्या तुम दोनों मेरे माल के पीछे पड़े हो? मुझे जल्दी मेरा बटुआ दो वरना मैं काजी के पास चला जाऊंगा। कामिल की बातें सुनकर अयाज मुस्कुरा कर बोला, बेटा, जल्दी में इल्जाम मत लगाओ, पहले सोचो, अगर तुम्हारा बटुआ गायब हुआ है तो हसन का भी गायब है। क्या तुमने इसका बटुआ चरा लिया है? कामिल चौंक गया और जल्दी से हसन की तरफ देखा। हसन जो कुछ कहे बगैर कामिल की बातें सुनता रहा मगर अपने बटुए के बारे में कुछ न कहा। अयाज ने कामिल को समझाने के लिए मुस्कुराकर हसन से पूछा, बेटा, तुम्हारा बटुआ भी तो गायब है, तुम क्यों शोर नहीं मचा रहे? हसन ने अदब से जवाब दिया, अब्बा, शायद मैं कहीं भूल गया हूं, अगर किसी ने ले भी लिया है तो वो इसी घर में खर्च करेगा जो हम सब का है। अयाज ने कामिल की तरफ देखा और कहा, बेटा, यही फर्क है तुम में और हसन में, वो नुकसान पर सब्र करता है, तुम इल्जाम लगाते हो। वो मेहनत पर यकीन रखता है, तुम किस्मत पर। हसन की यही खूबी इसे कामयाब बनाती है और तुम्हारी यही जल्दी तुम्हें नाकाम कर रही है। कुछ वक्त बाद जब बाप ने दोनों का रवैया देखा तो उसने अशरफियों के थैले निकाल कर सामने रख दिए। कामिल और हसन हैरान रह गए कि ये क्या माजरा है। बाप ने कामिल की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम दूर दराज इलाकों से सामान लाते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन नाकामी की वजह यह है कि तुमने महज चंद अशरफियों के लिए अपने बाप और बड़े भाई पर इल्जाम तराशे। उसका मतलब है कि तुम्हारे लिए रिश्तों से ज्यादा दौलत की भूख अहम है। तुम्हारी लालच और लापरवाही का नतीजा ही ये बंटवारा था, वरना अगर तुम्हारे दिल में सच्चा भाईचारा होता तो आज तुम अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार को बहुत आगे ले जा चुके होते। मैंने सिर्फ तुमसे पैसे नहीं लिए थे, बल्कि हसन के थैले में तुमसे कहीं ज्यादा अशरफियां थीं, मगर वो खामोश रहा। से मालूम था कि ये पैसे या तो मैंने रखे हैं या उसके अपने भाई ने। इसके नजदीक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दौलत मेरे पास हो या उसके पास, क्योंकि आखिर में ये सब इसी घर के लिए था। बाप के खामोश होते ही हसन ने धीमे लहजे में कहा, कामिल भाई, अगर आज तक तुम कारोबार में टके हुए हो तो कभी सोचा है क्यों? अपने किसी मजदूर से पूछो कि तुम आज तक कैसे संभले हुए हो, वरना तुमने तो कब का अपने हिस्से का घर भी कारोबार में बेच दिया होता। कामिल ने बात जानने के लिए जल्दी मजदूर को बुलाया और कहा, ये क्या कह रहा है? मजदूर ने कहा, मालिक, हसन भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब भी मैं सुबह दुकान खोलता तो हसन भाई आकर आपका सारा हिसाब देखते। जो नुकसान होता वो खामोशी से अपनी जेब से पैसे निकाल कर मुझे देते और कुछ इजाफी पैसे देकर कहते कि उन्हें हिसाब में शामिल कर दो।
और जो इजाफी अशरफियां दी हैं उन्हें अपने पास महफूज रखो। कामिल को मत बताना ताकि वो कारोबार सीखे। नुकसान तो होता रहेगा, लेकिन चिल्लू वो कुछ तो सीख लेगा। जितना कर्ज तुम पर चढ़ा हुआ है, इससे कहीं ज्यादा रकम हसन भाई ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके दी है। मैंने ये पैसे अपनी अमानत समझ कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपको लूटा दूं। कामिल की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो रोते हुए बाप और भाई के गिले लग गया। उसे एहसास हुआ कि अगर ये दोनों ना होते तो वो आज कहीं का ना रहता। नदामत से लबरेज लहजे में उसने हसन से कहा, भाई मैं आपके साथ काम करूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। मैं वाकई नासमझ था, मुझे आप और अब्बा पर भरोसा करना चाहिए था। हसन ने मुस्कुराकर उसे गिले लगा लिया और यूं दोनों भाई एक होकर कारोबार में जट गए। जबकि बाप की खुशी का कोई ठिकाना न था। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में बाप और भाई का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये रिश्ते मिसाली होते हैं, मगर अफसोस कि आजकल कुछ लोग चंद पैसों के लिए इन कीमती रिश्तों को तोड़ देते हैं, जिसका अंजाम बाद में बहुत भारी पड़ता है। याद रखें, किसी भी काम में, चाहे वो अपना हो या किसी और का, ईमानदारी, खुश इखलाकी और नेक नीति को कभी न छोड़ें, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा, ईमानदारी, माँ बाप की दुआओं और गरीबों की मदद से मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल पर हर कहानी में एक गहरा सबक छुपा होता है, तो अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखें तो जरूर देखें। मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल पुरानी कहानियां को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ताउन का शुक्रिया।